I am Waqas Nasir and I welcome you to Jali Talk Show. I have heard people say that turn your weaknesses into your strengths, but there are quite a few people who are able to do that, and this interview is of one of those people. He drives his energy from the people, he loves everyone and is loved by everyone. He was always a happy person, but now he just smiles. Something happened in his life, and since then, he has been broken from the inside. He believes that grief is a long process and a person takes a lot of time to heal. This interview will give you a glimpse of how his journey has been, how he made a name for himself, and what a beautiful person Haider Miraj is. Assalamu alaikum Haider bhai, how are you? Assalamu alaikum Waqas, how are you? I'm good as well. Firstly, thank you so much for being on this show again, because you've been here twice. Alhamdulillah. Allah ji सच्चाई इज्जत दे. और Haider bhai, like this place, Ascole, it's wonderful. Like I know the concept behind Ascole, like how did you come up with the name? But what does Ascole do? Yeah, we are a very small creative agency firm and we work on image management, digital marketing, training and development, consultancy. और जो कोई काम कहता है हम कर लेते हैं. It's a lot of things. हम मज़ाफ़ात से आए हुए लोगों का मियाँ, मसला रिस्क का होता है, मोहब्बत का नहीं. वाह. तो हमें जो काम मिलता है हम कर लेते हैं. तो Haider bhai, like आपकी जो टीम है यहाँ पे they have started their own ventures. So like Yeah, is that देखिए a condition that they have to follow? Kind of, yes. We would really want कि हमारी जो टीम के लोग हैं वो so the first stage is hatching कि वो काम सीखें, काम होता कैसे, क्योंकि हम ज़्यादातर वेंचर क्रिएशन का काम कर रहे होते हैं, तो दे नो एवरी स्टेज अ ब्रांड गोज थ्रू. Okay. ठीक है. और उसके बाद ये होता है कि ऑन दी अदर स्टेज उनको मैनेजमेंट डिजिटल मार्केटिंग समझ आ जाती है. सही. ऑन दी थर्ड स्टेज में एट टाइम्स वी प्रोवाइड सीड फंडिंग टू देम. Right. और वी प्रोवाइड देम विद सोनू एंड स्पोर्ट. ठीक है. सोनू एंड स्पोर्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई भी डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करें, Yes. वी वुड गिव यू ऑल द सपोर्ट, वी वुड गिव यू ऑफिस स्पेस. Yes. आप ऑफिस के टाइम में उसका काम कर सकते हैं. Right. सोनू आपका गिफ्ट पैकेजिंग स्टॉक सब कुछ करेगा. ठीक है. Okay. आई फैसिलिटी मैनेजर. हम आपको हर जगह अपने वेंडर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, आपकी पीआर मार्केटिंग हम करेंगे, एंड ऑल द पीपल दैट वुड कम हेयर वी वुड प्रमोट यू टू देम. अभी जो है वो सादिया का एक ब्रांड चल रहा है कैलीग्राफी वगैरह का और फ्रेम्स का. क्रिएट डिजिक्स है सुमैया का, वो चल रहा है. ताऊ AK मुगीस का हनी है, प्योर ऑर्गेनिक हनी. रेदा के 2 स्टार्टअप्स हैं, एक ये जो आपको जर्नल नज़र आ रहा है RR स्टेशनरी, वो है, और गुलाबी कोड है जो वुमेन हाइजीन एंड हेल्थ पे काम करता है. तो 4 people from our team are Is this also co-working space? Like can people for our inner team. मतलब हैदर जो है वो he is one of the very few people, our visual art director who started you off. were talking about yourself. Okay. नहीं यार, ये सब लोग मुझसे बहुत बेहतर है. Okay. मतलब मैं आउटडेटेड हो गया हूँ. तो वो विजुअल आर्ट्स में उनका बहुत काम है, फ्रीलांसिंग में, और ही हैज़ बिन वन ऑफ द टॉप फ्रीलांसर्स. He has been working with multiple firms and Right. he has done an exceptional work. So most of the people here have an alternate work. You promote a lot of people. ठीक है. You develop their personalities, or at least इस पे आपको बैकलैश आएगा. okay. But But at least you play your part, like as much as you can. हाँ, ठीक है? as much as I That's can, what in my very own exactly. perspective. But at the same time, you don't say good things about yourself. Why do you do that? अच्छा, आप क्यों चाहते हैं कि मतलब मैं बहुत मुश्किल से लोकी हो रहा हूँ, मुझे होने दें, नहीं. आप बाज आ जाए. यार देखें, एक तो आई हैव बिन वेरी लकी थ्रू आउट माई लाइफ दैट आई हैव कम अक्रॉस ब्रिलियंट पीपल. ठीक है. एंड दे हैव डन एन इनक्रेडिबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू माई लाइफ. Yes. थिंग्स हैव नॉट बीन वेरी टफ फॉर मी. मुझे हर चीज़ बहुत आसानी से मिल गई. लेकिन कोई नहीं जानता कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को. तो वो हर जगह कहीं ना कहीं चैलेंजेस आए, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी
काम किया जितना भी मैंने काम किया, अब तो खैर मुझे लगता है कि आई हैव डन माई जॉब। You said कि आपको अच्छे लोग मिले and बहुत अच्छे लोग। बहुत अच्छे लोग मिले. This is the same thing that your father said once. I saw that video. आपकी शादी की वीडियो थी मेरे ख्याल से वो. And he said कि मुझे हैदर की बहुत फिक्र होती है. लेकिन जो मेरा बड़ा बेटा है ना, वो मुझे कहता है कि अब्बू आप फिक्र मत किया करें, हैदर के बहुत चाहने वाले हैं. ये अपने हिस्से की रोटी कमा लेगा. वो अपने हिस्से की रोटी कमा लेगा. हाँ. So हैदर भाई, you lost your father. And I know it like pains you a lot, but still I want to ask you, because I have been through that, the same thing. But the grieving process that you're going through, as a viewer, I think, because I won't be able to relate to it, because you're so much into it and you're so vocal about that. देखें, every one of us has been through it. Right. None of us has been vocal about it. Yes. ठीक है. मेरी ज़िंदगी के अंदर जितने भी छोटे छोटे मसले हैं, क्योंकि मुझे बार बार लोग कहते हैं ग्रैटिट्यूड करो, तो मैं उनको बहुत छोटा कहता हूँ. और द टाइप ऑफ कन्वर्सेशन दैट नाउ वी बोथ आर गोइंग टू हैव, आई हार्डली हैव इट ऑन कैमरा. Exactly. बट दैट कवर्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ मी. इट हैज़ 3 points एंड विल गो थ्रू ऑल ऑफ देम. पहली बात ये है कि मुझे अगर ज़ुबान का मसला था तो मुझे स्कूल में भी बुलिंग का सामना करना पड़ा, कॉलेज में भी, और टू एन एक्सटेंट यूनिवर्सिटी में भी. उसके बाद भी लोग, एक बहुत अमूमन नाम जो मैं अपना सुनता था वो थत्था था. हमारे यहाँ थत्था जो है वो listens to, like, who goes through this thing. हाँ. और अभी भी एट टाइम्स मुझे लोग कहते हैं यार तुम ना आराम से बात करके तुम्हारी बात समझ नहीं आती. तो मुझे लोग कहते हैं कि आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें, पर चलिए खैर. तो अगर आपको याद हो तो 2009-10 से 2015-16 तक मैंने इस पर बहुत बात की कि मुझे अगर बोलना नहीं आता तो मुझे अल्लाह ने उसकी बहुत इज़्ज़त दी है. ही हैज़ मेड माई वीकनेस माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ. भाई अगर खुदा ने मुझे कभी अभी तक अल्लाह आसानी करे, पर अगर औलाद का मसला मुझे आया तो आई हैव बिन वेरी वोकल अबाउट इट कि यार कोई मसला नहीं है. Yes. अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होता. 2 लोगों का एक दूसरे का साथ होना उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है. आपका साथ किसी तीसरे से मशरूत नहीं होना चाहिए. बिल्कुल. इट शुड नॉट बी कंडीशनड फॉर अ हैप्पी लाइफ दैट. एंड अच्छी बात है, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि हम में से बहुत से लोग बहुत अच्छे माँ बाप नहीं बन सकेंगे. हमने आज तक अपनी पिछली नस्ल का बदला अपनी अगली नस्ल से ही है, अनकॉन्शियसली. वो है. तीसरी चीज़ जो है वो ग्रीफ आ जाती है. तो जब ये हादसा हुआ, पहली बात तो ये है कि ये इतना दुखा कैसे. तो हुआ कुछ यूँ कि 2006 में 5 में जब ज़लज़ला आया, तो उन्हीं दिनों में जब ज़लज़ला आया और मेरे वालिद साहब वापस घर आए वॉक करके, और वो हमारे सीढ़ियों के ऊपर बैठ के अपने जूते साफ़ कर रहे थे. मेरी वालिदा अपने कमरे से निकल के आई और उन्होंने कहा ज़लज़ला आया है काफ़ी शदीद. 7 या 8 बज के कुछ मिनट हुए चाहते थे तब ये हुआ. तो मेरे वालिद साहब बहुत बाद में बताते हैं, हसन की किताब में भी लिखा है कि हमारी ज़िंदगियों में से हमें ज़लज़ला आ चुका था, क्योंकि अब्बू कहीं वॉक करने गए थे, उनकी जेब से कागज़ गया, पीछे उनके दोस्त आ रहे थे, उसने वो कागज़ उठाया और बावाज़ बुलंद कहा, शेख साहब किन्नू कैंसर के आ बैठे हो. दैट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन माई फादर केम टू नो दैट माई मदर वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर. शी वेंट थ्रू अ सर्जरी ऑन 22 अक्टूबर इन वेरी क्लिनिक. सर्जरी के दिन मुझे हॉस्पिटल पहुंच के पता लगा कि मेरी वालिदा की सर्जरी हुई है. उससे पहले मुझे नहीं पता था. हम अपने चचा के घर गए, चचा हमें लेके इस्लामाबाद चले गए, पिंडी. अब वो जब हुआ 19 अगस्त को, तो मुझे 10 जुलाई जो मेरी सालगिरह का दिन था, उस दिन ये पता चला कि अम्मी को कैंसर ही अकर हो गया. 19 अगस्त को अम्मी इस दुनिया से चली गई सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में, कमरा नंबर 4. शी पास्ट हो गई. मैंने उसके बाद भागने की कोशिश की. मेरे पास आई हैड द लिबर्टी टू रन. आई रैन. मैंने घर छोड़ा, मैं भाग गया. मैं लाहौर गया. लाहौर में मैंने किप से तैयारी की. किप से तैयारी करके तब फास्ट का ये बहुत शुक्र है कि वो कहते थे जितने मर्जी टेस्ट हो, तो मैंने कोई 10-11 टेस्ट दिए. ठीक है. और 10-11 टेस्टों के बाद हुआ ये कि मुझे सवाल याद हो गए.
तो मेरे जवाब ठीक हो गए, क्योंकि मुझे उसके अलावा कोई आसार ही नहीं थे। एंड आई मेड इट टू फास्ट इस्लामाबाद, तब मेरा फास्ट हॉल में भी दाखिला हो गया। पहले सेमेस्टर में मेरी वार्निंग लग गई, आई गॉट 1.89 ऑफ CGPA। तो मैंने अपने अब्बा को कॉल की। मेरी अब्बा और मेरी कभी फ़ोन पे 1.5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम बेटा, खैरियत से हो? जी खैरियत से। सब ठीक है? जी अब्बू ठीक है। पैसे हैं? जी अब्बू हैं। चल बेटा अपना ध्यान रख। दैट इज़ इट, नथिंग मोर देन दैट। मुझे लगता है मेरे बाप के साथ खामोशी का ताल्लुक़ था। फिर वकास मियाँ मैं अपनी ज़िंदगी में लग गया। मैंने कहा कि कुछ करूँ, क्योंकि मेरी वालिदा ने जाते जाते मुझे कहा था अपने प्यो नू तंग ना करूँ। और तब जो माँ बाप को लगता है कि बेटा इंजीनियर बन जाओ, तो मैंने इंजीनियर कभी नहीं बनना था। मेरी वालिदा की आखिरी ख्वाहिश थी और हम खुद डिज़ाइन लग गए। तो हमने कहा जी इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद मैं वापस आ गया 2012 में। बीच में मेरी दादी का इंतकाल हुआ। ये वो वक्त था 2005 कि जब हम नए नए अपने सरफराज कॉलोनी के घर से खैबान 2 आए थे। छोटे घर से बड़े घर की हिज्जत बहुत तकलीफ दे होती है, ये तुम्हें अंदाज़ा नहीं है शरीयत का। बड़े घर कुशादा होते हैं, बड़े घरों में पैसे की फरावानी ज़्यादा होती है, पर जब एक कमरे से निकल के सब अपने अपने कमरों में जाते हैं तो उसकी अज़ियत बड़ी मुख्तलिफ होती है। जब चाय पाइयों से सोने वाले, तब हमारी ये होता था चाय पाई पे सोते तो सुबह 4 बजे जाके अंदर AC चलाते थे। उसके बाद जब अपने अपने कमरों में सोना शुरू हुए तो एहसास नहीं हुआ कि कहाँ से आए हैं। माई फादर बिकेम ऑर्फन व्हेन ही वाज हार्डली 1.5 years old, या 2 साल के होंगे। मेरी दादी को ये डर था कि मेरा बाप बदला ना ले, तो मेरी दादी मेरे अब्बू को शाहदरा से रायपुर ले आई। वो अपनी तमाम बहनों में इकलौते भाई थे। उसके बाद मेरे बाप ने बहुत मेहनत की। मेरा बाप मैंने अपने बाप से ज़्यादा मेहनती आदमी नहीं देखा। मैंने अपने बाप से ज़्यादा दरवेश नहीं देखा। मैंने अपने बाप से ज़्यादा विजनरी आदमी नहीं देखा। उसने कभी किसी के लिए, वो कहते थे बेटा आसानियाँ पैदा करो। मतलब अगर हम कभी कहते ना अब्बू इसने हमें नहीं बुलाया, तो कुछ नहीं होता बेटा आसानियाँ पैदा करो किसी के लिए। जब मैं अब्बू को लेके अबवा गया उनके एक्सरे के लिए, उस दिन भी मेरे बाप ने अपनी जेब से पैसे निकाल के मुझे दिए। वो इतने खुददार आदमी थे कि उन्होंने कभी हम में से किसी से कोई प्यार लेने के रवादार नहीं हुए कभी भी। और तो फिर पे दर पे अम्मी का नुकसान हुआ। आई वॉज वेरी सेंसिटिव। मैंने अपना कॉपिंग मैकेनिज्म ये बना लिया कि मैं लोगों के काम आना शुरू हो गया, लोगों से वेंट करना, लोगों के काम आना। वो एक डस्टबिन, ठीक है, मैं डस्टबिन बन गया, कभी कभी मैं फ्लोर मैट बन गया, पर ठीक है जैसा भी था। और मज़े की बात है कि ये तमाम लोगों ने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जाके मेरे बारे में गुफ्तगू की, जो घूम के मेरे पास वापस आई। तो मुझे याद आया कि मौला अली का कॉल है कि जिस पे नेकी करो उसके शर से बचो। और अब मुझे लगता है कि शायद वाकई मुझ में मसले होंगे जो लोगों को लगता था। उसके बाद मैं 2012-13 में वापस आ गया और अब मैं अब्बा के साथ रहता। तो कभी ये नहीं हुआ कि मैं जाऊँ और अब्बा और मैं बैठ के टीवी पे फिल्म देखें। हमारा कभी ये ताल्लुक़ नहीं था। 1.5 मिनट का ही होता था। ताल्लुक़ 1.5 मिनट का था, ठीक है। और मैं वहीदा को ज़्यादा कहता था कि तुम अब्बू से बात करो, क्योंकि मैं नहीं कर सकता। वो एक खामोशी का ताल्लुक़ है। अब्बा का जाना वॉज द फाइनल ब्लो। फिर थिंग्स स्टॉप्ड मेकिंग सेंस टू मी। उस दिन के बाद से मैंने काम नहीं किया। मैंने कोई भी चीज़ आपको दिस स्टॉप मेकिंग सेंस टू यू। आपके पास सब कुछ है पर आपके सीने से रख के कोई नहीं रो सकता। कोविड की मौतें बहुत मुश्किल है। कोविड की ज़िंदगी तो मुश्किल है, कोविड की मौतें बहुत मुश्किल हैं। ये बड़ी अज़ियत दे मौतें हैं। आप आते हैं तो लोग आपको कहते हैं ताबूत से नहीं निकालना, दफनाना कब है, जनाजा जल्दी करो। आपके अपने सरहद पार से आ नहीं सकते। एक बड़ी डिजिटल मौत होती है, बैन करती औरतें आपको उस तरह नज़र नहीं आती। आपको बहुत खामोश फूरी नज़र आती है। लोग अपनी अपनी सहूलत से जिस बहन भाई से अफसोस करना उससे अफसोस कर लेते हैं, ठीक है। और फिर दे स्टार्ट सेइंग थिंग्स दैट वुड इवेंचुअली हर्ट यू। अब आप एक टेप रिकॉर्डर लेके बैठ जाएं, हर आदमी आगे कहेगा अच्छा होया की सी, हाय तुसी इंज क्यों नहीं कीता, हाय तुसी repeat that same story to everyone। yes, ठीक है। तो अब लोगों को ये डर है, ये मसला है कि मैं हर मंडे को ये क्यों लिखता हूँ मंडे, yes, क्योंकि आप लोगों ने मुझे तब नहीं भूलने दिया तो मैं अब आपको क्यों भूलने दूँ।
तो ये grief is Now it all makes sense. Grief it all is- makes sense. grief is a very painful process. It Yet is. it grows inside you. It does. It grows inside you. तुम्हारा गम तो जैसे मेरे हाथ में बया हुआ। मुझे ये दुख नहीं था, हर कोई जाता है, मुझे people have been this insensitive that they said सब कुछ तो कर दिया था बेटा, बच्चे भी सेटल, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थोड़ी थी कि बच्चे सेटल कर दिए, अब यू में गो, घर बना लोग दिया, कहते हैं कि जिम्मेदारी अब पूरी यू में करनी गो, थी। अच्छी जिंदगी गुजार गए। मसला जाने वाले का नहीं होता, मसला रहता पीछे रह जाने वालों का होता है। और जब आपके यहाँ कोई बया ना हो, आप किसी से कुछ पूछ ना सकें, तो फिर अगर आपको किसी चौक में कोई सिपाही भी रोके ना, तो आप बैन कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो गमे हुसैन से ज़्यादा हम अपने गम को ही होते हैं। दीज आर स्मॉल ट्रिगर्स। मेरा प्रॉपर्टी का इशू हुआ और मैं 1 घंटा बाहर बैठा कि मैं किसे फ़ोन करके पूछूंगा मैंने क्या करना। मेरे अब्बा ने हमें PIA शेवई, आपको पता PIA शेवई क्या होता है? हाँ, हमारे अब्बा ने हमें PIA शेवई बनाया था। PIA शेवई वो मुर्गी का बच्चा होता है Okay. जिसको एक ऐसी इंक्यूबेशन में रखा जाता है कि वो एक ख़ास टेम्परेचर में ऑपरेट करता है। Right. वो ज़्यादा ठंड में भी मारी जाता है, वो ज़्यादा गर्मी में भी मारी जाता है। Okay. तो मैं यहाँ AC में तब बंद करता हूँ अब जब हीटर चल जाता है। तो मेरे अब्बा ने हमें इतना कंट्रोल्ड, इतना पैम्पर्ड, और वो आदमी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। मतलब हमने अपने अब्बा को कभी बड़ी गाड़ी चलाते नहीं देखा। The last conversation that I had with my father was on 13th June, Saturday it was. तो वो सालन वगैरह खाना वाना खा के वो कुर्सी पे बैठे हुए थे और उन्होंने कहा बेटा तुम क्यों इतने आए हैं, ये तो बहुत महंगा है। तो मैंने कहा अब्बू दिस इज़ व्हाट यू डिजर्व, दिस इज़ व्हाट यू अर्नड। तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा मैंने अपने साथ बड़ी ज़्यादती की, मैंने अपने आप को आसानियाँ नहीं दी, मैंने अपना, और ये चीज़ हमें हमारे बाप की तरफ से मिली है कि हमने कभी अपनी ज़ात पे आसानी नहीं की। आप मुझे कहेंगे कि आपने कुछ खाना है तो मैं आपको ले जाऊँगा, मैं आपको कभी नहीं कहूँगा यार मेरा खाने का दिल का है, या मैं अपनी जेब से कभी जाके नहीं खाऊँगा, ठीक है। अगर मैंने कहीं जाना होगा तो मैं अपने लिए वो आसानियाँ नहीं करूँगा। मेरा ये बहुत मशहूर है कि मैं कोई बंदा कहना अच्छा काम तो कहता अच्छा यार रोटी खुआओ, ठीक है। और बट आई नेवर बाय समथिंग फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई वॉन्ट टू। वो इतनी ज़्यादा, और ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लोगों को अपने लिए आसानियाँ करनी चाहिए। Yes. बट फ्यू मेरे वालिद साहब के अंदर इसे यतीमी नहीं निकली थी, वो ही ग्रू सो मच इन इट। और अब जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि यार माना कि अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, माना कि पहाड़ों पे अभी बर्फ़ जमी है, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक सब कुछ है इस शहर में, एक तेरी कमी है। तो दी बेस्ट आ फादर कुड डू वॉज, जब मैं फास्ट से डिग्री करके आ गया, मेरे अब्बा ने कभी मुझे ये नहीं कहा तुम ये नौकरी करो ये ना करो। उन्होंने कहा बेटा जो करना चाहे करो। वो कहते थे रिस्क में सबसे बेहतरीन रिस्क वो है जो आपके शौक का रिस्क हो, द थिंग्स दैट यू हैव टू डू। He has inculcated a lot of positive things in you, Heather Bhai, and it shows. अब मुझे पता चला कि like this is the Heather Miraj and why is he like that. बट इट केम, अब मैं मुझे रिसेंटली पता चल, यू कनेक्ट डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड। आई पोस्ट स्टोरीज तो मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि अब Yes, I was going to narrate one of those stories. I thought वो like, कि आप it व्हाट्सएप was देखें ना तो hits. आपको मैं व्हाट्सएप देख के लगेगा ये बंदा सुबह तक नहीं बचेगा, बिकॉज इट हिट्स एंड आई एम वोकल अबाउट इट, इट बैकफायर्स। फ्यू पीपल हैव बीन एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव टू मी, बट मैं कहता हूँ अच्छा यार मैं क्या करूँ, But मैंने तो Heather बोलना भाई, है। जो आपने कहा ना कि like लगता है कि सुबह बंदा नहीं बचेगा, I saved those screenshots and that's what I was using my cell phone because sometimes it actually looks like that. हाँ. You write things and फिर मैं सोचता हूँ कि like should I text him, और फिर जब मैं देखता हूँ लिखा था unavailable, हाँ it scares me. यार क्या करूँ मैं। आज सुबह मेरी किसी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा तुमने इतना कुछ अंदर लोगों के डाल दिया है कि तुम किसी को अपनी तरफ, तुमने दिल की तरफ आने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं आपने। दोस्त। अब रिश्तेदार की जोई मोहम्मद नट जाना या रोना, जब 2-3 दफ़ा लॉस करते हैं ना तो फिर आप अटैचमेंट से बड़ा डरते हैं। जब अम्मी की डेथ हुई थी तो मैंने सोचा था कि आई विल नॉट गेट अटैच टू माई फादर, आई विल नॉट गो थ्रू द ट्रॉमा अगेन। मैं बहुत देर प्यो माँ रहा हूँ, फिर आई हैड नो अदर ऑप्शन। Yeah, you wrote something about that. Like there are 3
stages: anxiety, fear, and trauma, and they're all connected. हाँ, ये बहुत मैं जब मंडे के दिन अब्बू को डॉक्टर उमर उस्मान के पास मैं जा रहा था, मैं रास्ते में हसन से बात, यार ये बहुत अजियत दे वक्त था वकास, मैं उसके बाद से नहीं सो सका। अब मैं उठ जाता हूँ 4-5 बजे, फिर आई स्लीप अराउंड 7, देन आई गेट अप एट 8, देन आई स्लीप एट 9। बहुत छोटे छोटे डर हैं कि या ये ना हो जाए, ये बंदा ये ना कह दे, अब यूँ ना हो जाए। तो पहले ईद वाले दिन वहीदा गॉट बर्नड और मैं उसको ये किया, फिर भाई को कोविड हो गया तो मुझे अचानक बया होना पड़ा एक ही दिन में। मैं तो दुश्मन के बिछड़ने पे भी रोया था बहुत, तू तो फिर यार है और यार भी जज्बाती सा। तो अब वहीदा को ये कि मैं लाहौर गया, पीछे भाई की तबीयत ख़राब हो गई, अब भाई को बहुत शदीद कोविड हुआ, तो तब मैं आप लोगों के हैकाथॉन्स करवाया था। और देन हाँ, ये तब था, मेरा 6 जून को हैकाथॉन था, और उसके बाद हैकाथॉन में जो लंच ब्रेक आती थी उसमें मैं जाके अब्बू का सैचुरेशन मीटर, ऑक्सीमीटर लेने गया था, और आई केम बैक एंड आई रैन अ कंप्लीट सेशन। तो उसके बाद अब्बू को जब कोविड हुआ तो मुझे याद है संडे को मैं सारी शाम अबवा में बावाज़े बुलंद ये पढ़ता आया, रे ओ यार हवाले अब दे ते मेरे 4 दिन आ दे, उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलेंगे। तो लेटिंग गो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं आज तक नहीं लेट गो कर सका। मुझे याद है मैं फास्ट में होता था और मुझे पता चलता ना इस आदमी ने मेरे बारे में ये बात की है, तो मैं सो नहीं सकता था। मैं आई रिग्रेट फॉर बीइंग सो सेंसिटिव एंड आई फील कि कल मैं एक किसी से बात करता तो नहीं कहा, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज पीपल योर लव्ड वन हैव सफर्ड अ लॉट, दे सी यू लाइक दिस। आई हैव ब्लीडेड ऑन द पीपल हु डिड नॉट कट मी, आई डिड। माई वाइफ, मैं अब कभी कोई कॉल्स दे रहा हूँ या ये होता है, और जब मैं बंद करके लेटता हूँ तो कोई बंदा मुझसे बात करे तो मैं कहता हूँ अच्छा अब सुबह, क्योंकि वी ऑल हैव अ वेरी लिमिटेड सेट ऑफ एनर्जी, वी रन आउट ऑफ देम। और अब व्हेन एवरीवन इज ट्राइंग टू शो मी द लाइट, इट्स ऑल वेरी डार्क। It is quite understandable. Heather bhi, like usually I ask this question हर किसी से, but आपसे नहीं पूछूंगा because you have already answered that question. What is that thing that keeps you bright in the darkest of times? But what is that light? What is that thing that keeps you bright in the darkest of times? Now, if you have to answer that question, यार मुझे इसमें एक सवाल का जवाब दो, क्या लिखा है उसका क्या जवाब है, उसको पहले पढ़ो ना और फिर बताओ उसका क्या जवाब है। What would you do if you weren't afraid? A lot of things. Like now I cannot think of it. यही होता है, ये माहौल हब्स ज़्यादा हो गया। अब कुछ नहीं पता अगले महीने अगले मिनट कौन सा धमाका हो जाए, कौन सी चीज़ है जो मिसकंस्ट्रक्ट करके आपके सामने लाई जाए, कौन सी कहानी है जो आपके सामने आ जाए, कुछ पता नहीं है कब पीपल स्टार्ट बैशिंग यू। तो मुझे कोई ऐसा सवाल पूछो कि मैं तुमसे माजरत कर लूँगा, क्योंकि मैं डरता हूँ कि जो तुम्हारे कमेंट्स में नेगेटिविटी आएगी वो मुझे सोने नहीं देगी, तो मैं बहुत सेफ खेलूँगा। Okay, that's great. बहुत सी I get it. Now I know where this is going. हाँ, बहुत सी ऐसी बातें हैं, मतलब आप यू आर जज। मुझे कल किसी ने आया कहा यार वो कोई पूछा था हैदर भाई शिया है या सुन्नी है, मैंने कहा यार उन्हें कहते सुशी है, ठीक है। क्योंकि मैं ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से हुई हैं। Yes. हमारी जो फुप्पो हैं, शी गॉट मैरिड टू समवन शिया सेक्ट, और हमने पूरी ज़िंदगी फुप्पो के साथ हमारे घर की दीवारें सांझी थी, हमने सबीलें ये गाई हैं, हमने कूंडे किए हैं, हमने तालिब जौहरी की शाम गरीबा सुनी है, हमारे घरों में मुहर्रम में टीवी नहीं चलता था, गम का कभी मसलक हुआ ही नहीं। जैसे मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती, गम का कोई मसलक नहीं होता, ये ऐसे ही है। तो अब आप कोई भी बात करते हैं, मैंने उस दिन एक हीलिंग के ऊपर बात लगाई था कि मैंने उसके ऊपर लिखा कि दो आई फेल्ड एट इट बट पीपल कॉल्ड मी अप एंड सेड यार देखो ना तेनों दवाई का पता भी तो तू लैंदा नहीं, इट्स वेरी ईजी आई सेड।
मैं अब कभी ख़त लिखूँ तो मैं उस पर लिख देता हूँ कमज़ोरी दिल हज़ात ना पड़े, क्योंकि आप ये भूल जाते हैं कि जिसने लिखा उस पर क्या गुजरी हो, आप उसे फ़ोन करके कहते हैं यार मुझसे तो नहीं देखा जाता। ये बिल्कुल वही बात है कि एक आदमी गया है, उससे ज़ख्म हुआ है, आप उसके पास जाएं और कहें 7 अप मंगवाओ, और कोई 7 अप जाए और आप खुद पी लेंगे मुझसे तो नहीं देखा जाता। ओके क्योंकि लाइक आई थिंक हैदर भी हम लोग वही सेम लाइंस एक दूसरे को बोलने के आदी हो गए कि इस मौके पे लेकिन ये मुझे वाली अगर चीज़- मैं इनबॉक्स चीज़ें हैं देखें तो बोलनी मुझे है। बहुत लोग प्यार मतलब उनका आता है। अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट। Yes, they अ do. वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, उनकी वालिदा कोविड से गुजर रही हैं, तो मुझे अब याद आया कि उसने मेरी तमाम चीज़ें, तमाम इन्फॉर्मेशन शी केप्ट इट विद हर। मुझे बहुत से लोग फ़ोन के कहते हैं आप कैसे हम अपने अम्मा अब्बा के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं कि यार ये वाकई शायद बहुत, तब नहीं पता चलता ये नुकसान होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तब नहीं पता चलता, हैदर भाई ये जब होता है तब पता चलता। जो मेरा आपसे आखिरी सवाल है ना वो इसी वजह से इस उसका जो बेसिक जो है पीछे एक थीम वो ये बिकॉज यू ड्राइव योर एनर्जी फ्रॉम द पीपल अराउंड यू। हाँ, आई गेट ड्रेन्ड आउट टू। यू गेट ड्रेन आउट टू लाइक दैट्स व्हाट यू आर टेलिंग मी, ठीक है। तो आई एक्चुअली वांट टू लाइक लोगों से उम्मीदें वाबस्ता करना या फिर उनके ऊपर उनसे अपनी एनर्जी ड्राइव करना। डू यू थिंक यार देखें You get tired? हाँ देखें, मुझे आज सुबह ही किसी ने बताया है कि एक तो दरवाजे बंद करने के बाद रोशनी कहीं से नहीं आएगी, तो मैंने अपने इर्द गिर्द के दरवाजे बंद कर दिए हैं। मुझे कहानियाँ बहुत, मुझे कल किसी ने ये भी कहा, रात को हम बैठे हुए बात कर रहे थे शाम को, कि यू हेल्प पीपल बिकॉज यू वांट टू गेट सम रिलीव आउट ऑफ इट, यू वांट टू फील कंटेंटमेंट एक आती है ना। हाँ, ये मुझे भी ये लगा था, लेकिन ये बात वैसे। अब तो ये आपको ड्रेन कर रही है, तो यू आर वाई, तो मुझे ये लगता है कि मैं अब इतना ड्रेन्ड हो चुका हूँ, इससे मैं अनअवेलेबल भी लिखता हूँ, बिकॉज व्हेन आई वाज डाइंग पीपल वर स्टिल स्लाइटली इनसेंसिटिव, कि दे और द थॉट वाज कि अच्छा मुझे उसका जवाब नहीं आया, मेरे रिलेशनशिप में ये इशू है, और मैं देख रहा हूँ कि सामने मरा हुआ आदमी अहम है कि ये मसला अहम है। इवन इन माई ग्रीफ आई वॉज गेटिंग कॉल्स, इवन इन माई ग्रीफ, एंड लोग प्यार करते हैं ना वो आपके पास आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर वो जो अनअवेलेबल मैं लिखता हूँ उसकी बहुत सी वजह ये है कि अब हिम्मत ही नहीं होती बात करने की। मुझे मसला ये है कि आप मुझे मैसेज करेंगे मैं जवाब नहीं दूंगा, तब भी मुझे मसला है कि वो ये ना समझे कि बड़े आदमी हो गए। बिल्कुल ठीक है, तो यू नीड टू बी रिस्पॉन्ड, यू नीड टू रिस्पॉन्ड। सो माई एनर्जी इज व्हेन आई सी पीपल लाइक यू और पीपल हु हैव been a part of my journey and they are doing a lot of these uncharted communications. They entered uncharted territories. They talk about it. क्योंकि मुझे बार बार मैं अपने आगे कहते हैं कि इतने दरवाजे बंद ना करो कि कोई रास्ता ही ना हो। किसी ने ख्वाब देखा था कि एक बंद टनल है और वो कहीं फंसे हुए हैं और दरवाज़ा नहीं खुला और वो आवाज़ें दे रहे हैं, उन्हें लगा था ये ख्वाब उनके बारे में। तफ्तीश करो मुझसे मेरे हाल के बारे, मालूम करो क्यों मुझे आराम नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अब आई वुड वेरी शेमफुली एडमिट कि दिस ग्रीव हैज़ टेकन अ लॉट ऑफ टोल ऑन मी, इट हैज़, और नाउ थिंग्स डोंट मेक सेंस। मतलब आप आगे जाएं किसके लिए? आप सब कहते हैं ना एक वजह होती है, यस, ये लूँगा मैं 2-4 घर, उसके बाद क्या? आपके पास सब कुछ है, आप अपनों को नहीं बचा सके। and you know, like I cannot even respond to it because whatever I will say, I don't know will I be saying the right thing or not. नहीं देखें, मैं हर सच जो होता है ना वो लम्हे का सच होता है, हर आदमी का सच उसका अपना है। I am extremely grateful to the people who have been sitting with me and having silent conversations. I You do need understand silent to- conversation. हैं? Yes, I do understand. You need to silent- get out of this role play. मोहब्बत जो है ना वो किरदार से आज़ाद होती है। आपने उसको स्टैम्प नहीं करना कि मैं इस किरदार में करूँ या मैं इस किरदार में करूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत मोहब्बतें की हैं। दैट हैज़ बिन अ ह्यूज ड्राइविंग फोर्स फॉर मी। अनकंडीशनल लव, Right. अनकंडीशनल सपोर्ट, और मुझे लगता है कि वो जो खामोशी से आदमी आपके साथ बैठा है
वो आपको हिम्मत देगा काम करने की, वो आपको ताकत देगा। वेरी डीप एंड वेरी फिलोसफिकल। तो लेकिन टू ऑल ऑफ द पीपल आई से कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। अब all of these people have to do amazing things. Yes. One thing that I would plead is कि अपने माँ बाप को उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ दें, उनके किस्से सुने, उनकी कहानियाँ सुने, उनसे बातें करें, Gives you a lot of energy. उनसे बातें करें। जो बातें वो आपको बताएंगे वो आपको और कोई नहीं कोई बताएगा। नहीं बता सकता। फिर जब आपके बच्चे आपके पास बैठ के पूछेंगे कि आपके अम्मा अब्बा क्या कहते थे, तो आपको we are nothing but the stories we tell. Yes.